हेलो बैंकर्स और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जेआईबी सीआईबी प्रेप पे। इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूनिट नंबर 25 which is all about NBFCs. Okay, so non-banking finance companies, one of the most important unit from your module C. You'll face at least 2 marks question based on this particular unit. Okay, हर बार आपका एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा जाता है और कहीं ना कहीं अभी पिछले कुछ समय में आरबीआई के द्वारा बहुत सारे चेंजेस आपके यहाँ पे लाए गए हैं रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, और काफ़ी एमर्जिंग एरिया है तो क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी आपका ज़्यादा होती है। ठीक है, अभी तक हमने ऑलरेडी 24 तक सारे यूनिट्स कर लिए हैं। आज का टॉपिक है आपका यूनिट 25 विच इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। सो लेट्स हैव अ लुक अबाउट द कोर्स कंटेंट. NBFCs, which cover the basic introduction, what is non-banking finance companies, evolution of NBFCs in India, role of NBFCs, regulators of NBFCs, classification of NBFCs, very important part, regulatory oversight by RBI on NBFC, again very important one, types of NBFCs, very important, concept of own fund and net own funds, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बैंक फाइनेंस टू एनबीएफसीज, fair practices code for NBFCs, again very important one, applicability of ombudsman scheme to NBFCs, scale based regulations, a revised regulatory framework for NBFCs। तो ये सारे ही टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशंस में इस पर्टिकुलर यूनिट का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, काफ़ी हाई वेटेज वाला यूनिट आप इसको बोल सकते हैं मॉड्यूल सी से। सो NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, दे act like or they look like a bank but they are not bank. ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 जिसके तहत ये रजिस्टर्ड होते हैं एंड यूजुअली जो बैंकिंग लाइसेंस है वो आपका BR एक्ट 1949 में जाता है। सो दे डज नॉट हैव बैंकिंग लाइसेंस, अदरवाइज सारी सिमिलरिटीज आपको इनको बैंक की जैसे देखने के लिए मिलेंगी। दे डू नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, बट इसके अलावा और सारी एक्टिविटीज आपका सिमिलरिटीज आपको बैंक की तरह इसमें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, लेट्स first we will talk about the basic introduction. NBFCs is a type of financial institution that provide various banking services but does not hold banking license. NBFCs play a crucial role in broadening access to financial services, enhancing competition and diversification of the financial sector. According to Section 45 IA of RBI Act 1934, a non-banking financial company in India must meet specific criteria to commence or carry on the business of NBFC or non-banking financial institutions. ठीक, multiple regulators आपके यहाँ पे होते हैं, उनके ऊपर भी आएंगे। NBFC are critical component of Indian financial system. They complement bank by providing financial services and products that meet the diverse need of business, industries, and individuals. Unlike bank, NBFC cannot accept demand deposit and are not part of payment and settlement system. Okay, तो ये बहुत important statement है, please do remember this. ठीक है, they cannot accept demand deposit means CASA deposit, current account and saving account, and another part is they are not part of payment and settlement system. ठीक है, जो PSS Act 2007 है वो इसमें आपका बेसिकली एप्लीकेबल आपका नहीं होता। ठीक है, पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, so the evolution of NBFCs in India is a dynamic story marked by the growth, diversification, and significant contribution to the financial sector. So first one is early beginning, pre 1960s. So जहाँ पे आपका initial formation, NBFC exist in various form, providing credit and other financial services. Limited regulation was there. There was limited regulation oversight during this particular period. ठीक है, दूसरा recognition and regulation started in the second phase, which is 1960s to 1980s. So regulatory framework, the RBI Act 1934 was amended in 1963 to include provision for NBFCs. बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, bringing them under the regulatory purview of Reserve Bank of India, आपका जहां पे कहीं ना कहीं आरबीआई के प्रीव्यू में उसको आपका इंट्रोड्यूस किया गया। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, एनबीएफसी बिगन टू ग्रो एंड डाइवर्सिफाई बाय वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक लीजिंग, हायर परचेज एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जिनको आज हम लोग
एक्टिविटी बेस आपका एनबीएफसीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द फेज जहां पे एक तो आरबीआई की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर एनबीएफसीज को आपका इंक्लूड किया गया विद दिस अमेंडमेंट इन 1963। दूसरा जो प्राइमरी रोल आपका था जहां पे ये खाली लैंडिंग पे या मनी लैंडर्स की तरह काम कर रहे थे, वहां से थोड़ा सा इनका एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। देन वी हैव रिफॉर्म एंड एक्सपेंशन in 1990s with new economic reforms जो जिनका इम्पैक्ट इनके ऊपर भी देखने के लिए मिला. So liberalization era, economic reform in 1990s opened up opportunities for NBFCs lending to rapid growth. Regulatory changes, RBI introduced new regulation to ensure transparency, stability and consumer protections. Emergence of specialized NBFCs, like different type of NBFCs emerged, focusing on microfinance, infrastructure finance, asset finance या others. तो यहाँ पे और कुछ और नए टाइप ऑफ नए फॉर्म ऑफ एनबीएफसीज जिनका बनना स्टार्ट हो, ठीक है। Expanding credit to underserved areas. So role of NBFCs in promoting inclusive growth of India. So role and responsibilities, objective, ठीक है। तो पहला extending credit to unserved areas which is part of the financial inclusion. तो रूरल रीच आपका जनरली जो एनबीएफसीज हैं वो सेमी अर्बन या रूरल एरियाज में काम करते हैं, ठीक है। So NBFCs often operate in rural and semi-urban areas where traditional bank may have limited presence. Micro and small enterprises तो इनके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल ये रहे हैं, ठीक है। They provide credit to small and medium-sized enterprises, supporting एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब क्रिएशन। अब आते हैं रेगुलेटर्स के ऊपर। ये चार्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर हम लोग देखते हैं रेगुलेटर्स को, काफी बार इसके ऊपर क्वेश्चन मिलता है। सो कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 और आपका द लेटेस्ट वन 2003, ठीक है, 13। सो एनबीएफसी इज रेगुलेटेड बाय, पहला तो आरबीआई के उसमें अगर हम लोग देखें एनबीएफसी इज रजिस्टर्ड विद आरबीआई. सो रेगुलेशन, सुपरविजन एंड सर्विलेंस एंड एनफोर्समेंट अंडर आरबीआई, ठीक है। जैसे जो एनबीएफसी एमएफआई जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो, ठीक है। इसके अलावा टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अथॉरिटी ऑफ रेगुलेशन, सुपरविजन, सर्विलेंस एंड एनफोर्समेंट, जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसीज, दे गेट रेगुलेटेड थ्रू एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक. Merchant banking company, venture capital funds, companies, stock broking, collective investment schemes, they get regulated by SEBI. Nidhi companies, mutual benefit companies, they get regulated by Ministry of Corporate Affairs. Chit fund companies, state government and insurance companies, IRDA, ठीक है। तो ये आपका जो रेगुलेशन है, अलग अलग टाइप ऑफ एनबीएफसीज को उनके लिए अलग अलग रेगुलेटर्स जो आपका बनाए गए, ठीक है। अब एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसीज। तो क्लासिफिकेशन आपको दो टाइप से मिलेगा, एक आपका डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग विच इज बेस्ड ऑन लाइबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन। अनदर वन इज एक्टिविटी बेस्ड। एक्टिविटी बेस्ड में आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। So non-NBFCs in India can be classified based on various ground. जैसे पहला आपका liability based classification, ठीक है। So one is deposit taking NBFCs who can take accept deposit from the customers apart from CASA deposits, ठीक है, मतलब डिमांड डिपॉजिट के अलावा। So these are NBFCs that allow to accept public deposit. They are subject to a specific regulation requirement related to deposit acceptance, capital adequacy and reporting. We will come to these particular guidelines, ठीक है। और these guidelines are generally issued by RBI itself, ठीक है। दूसरा, non deposit taking NBFCs, these NBFCs are not permitted to accept deposits. They are still regulated by RBI but have a different set of compliances requirements, ठीक है। तो आपका नॉन, तो पहला जो कैटेगराइजेशन डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग आपका, ठीक है। अगर हम लोग एक्टिविटी बेस पे देखते हैं, आज की डेट में जैसे हमने जो इसका ओवरऑल एनबीएफसीज का इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। सो 19 वाज द टाइम, 19 वाला जो फेज था जिसमें एक्टिविटी बेस्ड आपके एनबीएफसीज काफी तेजी से ग्रो किए, मार्केट को उन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जहां पे जैसे एसेट फाइनेंस कंपनीज जो लीजिंग या अदर्स इसमें काम करते हैं, ठीक है। जैसे कोई कंपनी अगर इफ दे आर परचेजिंग सम मशीनरी, जैसे आपका कोई एयरलाइन कंपनी कोई एयरक्राफ्ट परचेज करिए, सो दे कैन वर्क एज अ फाइनेंशियर, राइट।
So, engage in financing of physical asset such as machinery, equipments, vehicle, etc. Investment company primarily involved in the acquisition of securities such as shares, bond, and debentures. Loan company आपका provide finance by making loan and advances to various sectors. ठीक है. Next आपका microfinance institution focus on providing small loan and financial services to low income individual and groups. Infrastructure finance companies specialize in providing credit for infrastructure project. ठीक है. इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज primarily engage in providing housing finance. Core investment companies invest mainly in equity shares and bond of the companies. Other specialized NBFCs, there are other specialized NBFCs creating specific sector or activities such as factoring, forfeiting, gold loans and others. तो ये आपका जो ओवरऑल क्लासिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा. ठीक है. क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको ये पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर. आप एक और मतलब क्लासिफिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका, क्योंकि क्लासिफिकेशन वाला इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है. और मतलब आप आसानी से उसको रिलेट कर सकते हैं, वन गो में समझ सकते हैं. अगला भी आसान है बट हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज फंड बेस, आप ओन फंड और आपका नेट ओन फंड्स. ठीक है. ये दो कॉन्सेप्ट आपके. ठीक है. सो कॉन्सेप्ट ऑफ ओन फंड्स एंड नेट ओन फंड्स फॉर एनबीएफसीज. The concept of own funds and net own funds are essential in context of non-banking financial companies as they relate to capital structure and regulatory compliances of these entities. मतलब based on this particular one, so जैसे जो regulatory requirements है, compliances है, so they have to meet up those particular guidelines. उनका जो bifurcation है that is आपका फंड ओन फंड एंड आपका नेट ओन फंड. ठीक है. सो बेसिकली आपका नेट ओन फंड हम लोग कैसे निकालते हैं, ओन फंड माइनस देयर आर सर्टेन एरियाज. ठीक है. जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के अंदर आते हैं. ओन फंड इज ओवरऑल, मतलब जो ओनर्स हैं उनका भी और जो आउटसाइड लाइबिलिटी है वो भी आपका. ठीक है. एक एक करके समझते हैं. अगर हम लोग बात करें ओन फंड्स की, ठीक है, सो ओन फंड्स रेफर टू the permanent capital of the NBFC which is available to absorb losses and support ongoing operations. It includes जैसे paid up equity capital, the amount of capital that has been subscribed and fully paid up by shareholders. ठीक है. जैसे कोई listed company others हो भी. दूसरा आपका free reserve that are freely available for distribution as dividends. It include a general reserve and share premium and etc. right. So जो इसमें आपके रहेंगे accumulated balance of profit, जैसे past years का जो balance आपका है, ठीक है, reserve and surplus में ही, ठीक है, the balance of profit that has not been distributed as dividend, okay, तो वो amount. Hybrid debt capital creation, a long term subordinated debt may be considered as part of own funds subject to specific conditions. ठीक है. Subordinated means it is a secondary debt which is raised by the NBFC from the market itself. ठीक है. एक्सक्लूजन कौन कौन से इसमें आपका नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, अगेन प्लीज पे योर अटेंशन. ठीक है. ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेंगे, याद भी करने पड़ेंगे. ठीक है. सो रीवैल्यूएशन रिजर्व, दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एनी अदर रिजर्व दैट आर नॉट फ्रीली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, आपका अदर इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल एंड अदर्स. ठीक है. तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली क्या हो गया, लाइक लेट्स से देयर वाज सम टैक्स लायबिलिटी लास्ट ईयर, जैसे टैक्स लायबिलिटी आपका था 5 करोड़ 5 लाख का, कंपनी ने 2 लाख का ही टैक्स पे किया, सो 3 लाख इज बेसिकली योर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दैट विल नॉट पार्ट ऑफ योर net that will be not part of your own funds of that particular company because that is like that amount they have to pay in this particular financial year. तो इस तरीके से जो आपके ये रहेंगे. ठीक है. तो these are part of own funds. Now अगर हम लोग बात करें net own funds का, so net own funds represent the actual capital available to the NBFC for conducting its business and supporting its operation. It is more refined measure of the capital base and is calculated as this. ठीक है. तो ये क्या है जनरली आपका, इट्स अ काइंड ऑफ कोर कैपिटल, जहां पे नेट मींस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट, देयर इज सम एडजस्टमेंट विद द ओन फंड्स. कैसे बनेगा, own funds minus, these are the adjustment, amount of investment in share of subsidiaries or joint venture or group companies, book value of debenture bonds outstanding, loans, advances made
to and deposit with सब्सिडरी जॉइंट वेंचर्स ग्रुप और कंपनीज. तो इसको अगर हम लोग हटा दें इसमें से, सो इट विल बिकम योर, मतलब जो हमारे ओन फंड्स हैं उनमें से अगर इनको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं देन इट विल बिकम नेट ओन फंड्स आपका. ठीक है, सो ओन फंड्स एंड नेट ओन फंड्स का जो बेसिक फंड है आपका. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेट ओन फंड्स फॉर एनबीएफसीज. पहला, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस. NBFC must maintain a minimum level of net own funds as prescribed by RBI. As of the knowledge of cutoff date, the minimum NOF required for an NBFC is how much? 2 करोड़ रुपीस. ठीक है, 2 करोड़ का मिनिमम आपका नेट ओन फंड्स उनका होना जरूरी है. दूसरा, कैपिटल एडिकेसी. NOF is a key component in the calculating capital to risk weight assets, CRAR, which is measure of the NBFC's capital adequacy also. Okay, so based on this NOF only, we will calculate risk weight assets for of the organization, and we will NBFCs, they are required to maintain their CAR or CRAR also. Risk management, a sufficient level of NOF ensure that NBFC has enough capital to absorb losses and continue its operation as well, right? So ये आपका पॉइंट. अब आता है अगला स्कीम, that is ombudsman scheme for NBFCs. Now NBFCs are also part of RBI integrated ombudsman scheme, but this scheme was get introduced in NBFCs in 2018, right? So 2018 के अंदर आपका जब ये जो ombudsman scheme है उसको उसका पार्ट बनाया गया किसको? आपका एनबीएफसीज को. मोस्टली दीज आर डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज. ठीक है, बट ऐसी जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं जिनका एसेट साइड 100 करोड़ से ऊपर है, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, तो अगर इनके जो भी कस्टमर्स हैं अगर उनकी कोई कंप्लेंट्स होती हैं, सो दे कैन फाइल विद द ombudsman scheme, right? So applicability of ombudsman scheme to NBFC. Ombudsman scheme for NBFC was introduced by RBI to provide a mechanism for resolving complaint from the customers of NBFCs. It offer a quick, cost-effective and efficient avenue for grievances redressal, and it was get introduced in 2018. ठीक है, यहाँ पे mention नहीं है, so please do remember this year also, right? So type of NBFCs covered under this particular one. ठीक है, कौन कौन से? NBFCs deposit taking NBFC, all deposit taking NBFCs are covered under this particular scheme. जितने भी NBFCs जो deposit accept करते हैं, they are part of this one. ठीक है, liability based classification. दूसरा, non-deposit taking NBFCs with an asset size of 100 crores or more as per the last audited balance sheet are covered. ठीक है, तो उनकी जो लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट है अगर उसमें उनके एसेट 100 करोड़ या उससे ऊपर के हैं, सो दे विल बी आल्सो पार्ट ऑफ ombudsman स्कीम. ठीक है, तो ये भी इसमें आप करेंगे और यही चीज आपका जो इंटीग्रेटेड ombudsman स्कीम है उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगी. The applicability of ombudsman scheme for NBFCs was introduced by RBI to provide mechanism for resolution of complaints against NBFCs. The scheme was extended to NBFCs in 2018. ठीक है, 2018 में आपका इंट्रोड्यूस किया गया. The RBI introduced the ombudsman scheme NBFC in 2018 to provide cost-free and expeditious complaint redressal mechanism relating to deficiency in the services provided by NBFCs. Covered under the scheme. The scheme cover all deposit-taking NBFCs and identified non-deposit taking NBFCs, जहां पे हमने बात किया कि अगर उनके लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट में they have asset worth rupees 100 crore and more, so they'll also get covered under this particular one. ठीक है, type of complaints covered under NBFC ombudsman. So complaint related to non-payment or inordinate delay in payment of interest, repayment of deposit, etc. Complaint concerning non-adherence to the fair practices code as stipulated by RBI. We will come to this particular one just after this slide. Complaint about non-compliance with RBI direction on interest rate, loan sanction and pre-payments charges, etc. Any other complaint raised out of violation of RBI's directive concerning NBFCs. ये जो guidelines हैं, this we are going to discuss just after 2-3 slide, right? Exclusions आपका क्या क्या चीजें इसमें cover नहीं होंगी. Complaint that are subject to existing legal proceedings. तो कोई ऐसा complaint जिस पे already आपका कहीं पे कोई केस चल रहा है बट अभी तक वहां पे फाइनल डिसीजन नहीं आया, सो दैट विल बी नॉट पार्ट ऑफ दिस.
complaint that have already been dealt with by the ombudsman and a competent court और अदर स्टेचुरी अथॉरिटीज. ठीक है, जैसा कोई केस आपका कहीं पे हुआ है और उस पर सुनवाई हो गया है, तो अब उसको ombudsman नहीं लेगा. उसके लिए जो अदर एपेक्स कोर्ट है वहां पे अगर कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है, सो दे कैन अप्रोच दोज पर्टिकुलर. सो दीज आर द एरियाज वेयर एनबीएफसी ombudsman इज एप्लीकेबल. ये सारे सिचुएशन जिनके लिए एनबीएफसी के जो कस्टमर्स हैं दे कैन अप्रोच टू ombudsman, एंड दीज आर द एक्सक्लूजन्स जहां पे एनबीएफसी ombudsman आपका लागू नहीं होगा. ठीक है, फंक्शंस ऑफ एनबीएफसीज, तो ये बहुत आसान हो गया. ठीक है, अभी तक हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं. नाउ मतलब आप आसानी से इनको रिलेट कर पाएंगे. ठीक है, एंड आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर पीडीएफ इन आवर टेलीग्राम ग्रुप. एंड टेलीग्राम का नाम है, ग्रुप का नाम है जीआईबी सीआईबी प्रेप आपका ऑफिशियल्स. ठीक है, सो जीआईबी सीआईबी प्रेप ऑफिशियल, इफ यू सर्च, वैसे मैंने आपको लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ले सकते हैं. ठीक है, सो जीआईबी सीआईबी प्रेप ऑफिशियल पे आपको ये सब मिल जाएंगे. आपकी कोई क्वेरीज होती है या कुछ भी आपके कंसर्न अबाउट जेआईबी सीआईबी एग्जामिनेशन, यू कैन कनेक्ट. ओके, सो पहला आपका लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, दूसरा वेल्थ मैनेजमेंट, अंडरराइटिंग, स्टॉक एंड शेयर्स, माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज, फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस एंड चिट फंड ऑपरेशंस. तो इसके लिए हमारे पास डिपॉजिट टेकिंग इन नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी से, एंड वी हैव एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन, जैसे माइक्रो फाइनेंस के लिए एमएफआई है, अंडरराइटिंग के लिए मर्चेंट वाले हैं, अदर्स आपका. ठीक है, अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट, अगले कुछ स्लाइड आपका जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अगेन. सो ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई. तो यहां से थोड़ा सा लीगल्स को हम लोग जाएंगे. सो फर्स्ट दे हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन, एंड एनबीएफसी मस्ट अप्लाई टू द आरबीआई फॉर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सीओआर जिसको हम लोग बोलते हैं. कंप्लाइंस, the company must comply with the all rules, regulations and guidelines set by the RBI. Assessment, the RBI assess the application based on various factors, including the company's financial standing, management expertise and adherence to other regulations. Issuance, if RBI satisfied the application with the application, it issue the COR, which is certificate of registration, allowing the company to operate as a NBFC. ठीक है, so minimum capital requirement, NBFC must have net own funds at least 2 crores or as prescribed by RBI from time to time. ठीक है, जैसे हमने पिछले भी आपका उसमें डिस्कस किया था. ठीक है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज, बहुत बार आपने इसके बारे में सुना होगा. ठीक है, तो इसमें ऐसी एनबीएफसी जिनका एसेट साइड क्या है आपका 500 करोड़ एंड मोर, जैसे सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स में वी हैव एचडीएफसी, एसबीआई एंड आईसीआईसी, वैसे ही यहाँ पे भी आपका कौन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक होगा और उसके लिए एडिशनल गाइडलाइंस. ठीक है, सो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज विद एन एसेट साइज ऑफ मोर देन 500 crore are considered as systematically important bank. They are subject to stricter regulatory oversight due to their potential impact on financial stability, right? So आपका डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग, इट्स अ रिपीट वन एक्चुअली, सॉरी. ठीक है, आपका एनबीएफसी ऑल डिपॉजिट टेकिंग आर कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम. ओके, एंड एनबीएफसीज आपका नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज विद एन एसेट साइज ऑफ 100. अच्छा, ओके, दिस वाज समथिंग रिलेटेड टू योर ombudsman which we already covered. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अगर आप देखते हैं जो क्लासिफिकेशन आपका है, ठीक है, लेयर बेस्ड क्लासिफिकेशन भी आपका है. ठीक है, सो बेस लेयर, मिडिल लेयर और आपका अपर लेयर और टॉप लेयर, देयर आर 4 टाइप ऑफ कैटेगरीज. ठीक है, जो एनबीएफसीज हैं उनकी कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर एसेट क्लासिफिकेशन. So NBFCs are non-deposit taking NBFCs with asset size of less than 1,000 crore. They will be subject to minimum regulations. पहला जो non-deposit taking NBFCs asset side आपका 1,000 crore से नीचे है आपका, they are generally categorized under base layer. ठीक है, and जो regulatory oversight होगा, जो guidelines होंगे, there will be minimum. ठीक है, middle level will include deposit taking NBFCs and all deposit taking NBFCs and non-deposit taking NBFCs with asset size of 1,000 crore to 5,000 crore. They will be regulated based on governance standard and prudent or risk management requirement. Upper level will include NBFC with asset size of more than 5,000 to 15,000 crore. Strict monitoring in term of capital liquidity and governance. Final top level will include NBFCs that asset size is above 15,000 crore
as well as all NBFCs, investment companies, highest level of scrutiny by the RBI. तो यहाँ पे जो RBI रेगुलेशन है आपका NBFCs के ऊपर, जिसमें लेयर्स आपके डिसाइड किए गए हैं, बेस लेयर, मिडिल, अपर एंड टॉप, इनकी थोड़ा सा जो गाइडलाइंस हैं या जो एलिजिबिलिटीज हैं उनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ एनबीएफसीज कैरिंग आउट स्पेसिफिक एक्टिविटीज, तो ये जो आपका अभी जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ठीक है, इसी में जैसे एनबीएफसी P2P, एनबीएफसी A2A या अदर्स without fund and customer interface will always be remain in base layer of the regulatory structure. दूसरा आपका सेकंड कैटेगरी मिडिल लेयर्स, अपर मिडिल लेयर और अपर लेयर्स एंड नॉट इन दी बेस लेयर्स एज एज द केस में बी, सो जहां पे ऑलवेज रिमेन इन मिडिल लेयर्स, ठीक है। देन वी हैव रिमेनिंग एनबीएफसीज जिनको आपका किस कैटेगरी में रखा गया है, the other one, ठीक है। So factors, guarantee companies could be any a layer of the regulatory structure depending on the parameters of scale based on regulatory framework. Government owned NBFCs shall be placed in the base layer or middle layer as the case may be. They will not be placed in upper layers till a further notice. ये बहुत important line है, ठीक है। Further detail of this regulatory norms may be seen from the above mention. ये आपका जो लास्ट था 21 का जो गाइडलाइंस है, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा, सो दैट विल हेल्प यू, ठीक है। सो रेगुलेशंस हमने पढ़ा, ठीक है। सो वी हैव आरबीआई regulators, we have this, again this type is very important, housing, NBFC, NHB, merchant banking, this and this, these are SEBI, and आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, निधि कंपनीज एंड म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज, चिट फंड कंपनीज स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, एंड इंश्योरेंस कंपनीज आपका एड। बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, सो प्लीज डू टेक केयर अबाउट दिस। कुछ पॉइंट आपका की पॉइंटर्स जिनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेशन, bank exposure to a single NBFC should not exceed 20% of their capital funds, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि since 2011 itself, ये हमने MFI के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है। आरबीआई ने आपका जो MFIs है उनको बैंकों की जो लैंडिंग है उसको PSL का पार्ट बनाया, ठीक है। सो अगर कोई बैंक किसी MFI को लोन दे रहा है तो दैट विल बी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर लैंडिंग दे कैन अचीव PSL सर्टिफिकेट आपका, ऐसा हमने समझा था, ठीक है। बट यहाँ पे एक्सपोजर लिमिट कितना कर दिया आपका, मैक्सिमम 20%, ठीक है। सो शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ देयर कैपिटल फंड्स आपका, पहली चीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड गाइडलाइंस ऑन बैंक लैंडिंग एनबीएफसीज. According to these regulation, a bank exposure to a single NBFC, both fund based or both funded and non-funded, should not exceed 20% of its tier 1 capital, ठीक है। जो बैंक का tier 1 capital उसका 20% नहीं हो सकता। However, the bank board of directors may choose to set a more straightened limit, ठीक है, वो आपका हो सकता है 5% पे भी उसको रोक सकते हैं, ठीक है। This regulation is in place to mitigate risk associated with excessive exposure to a single entity, आपका पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक्टिविटीज ऑफ एनबीएफसीज नॉट एलिजिबल फॉर बैंक क्रेडिट, अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। सो एक्टिविटीज ऑफ एनबीएफसीज नॉट एलिजिबल फॉर बैंक क्रेडिट, किन किन एरियाज के लिए आपका मतलब बैंक कैन नॉट फाइनेंस टू एनबीएफसीज, ठीक है। जैसे बिल डिस्काउंटेड और रीडिस्काउंटेड बाय एनबीएफसीज एक्सेप्ट फॉर रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल discount by the NBFC arising out of sale of commercial vehicles and two-wheelers and three-wheelers vehicles subject to under noted condition. जैसे bill should not have been drawn by the manufacturer or dealer, manufacturer on dealer only. The bill must represent genuine sale transaction. The bank should satisfy themselves about the bona fide and track record of NBFCs which have discounted the bill. Investment of NBFC, both current and long-term tenures in any company entity by way of shares, debentures and others, वहां पे नहीं होगा, इन एरियाज में होगा एंड मेजरली इस एरिया में आपका नहीं होगा, ठीक है। कुछ एरियाज लाइक इन सब के लिए हो सकता है बट अदरवाइज आपका बिल डिस्काउंट भी अलाउ नहीं होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री एरियाज, investment of NBFC both of current and long term nature in any company entity by shares, दूसरी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए
बैंक कैन नॉट फाइनेंस टू दैट पर्टिकुलर एनबीएफसी, सिंपल भाषा में। अनसिक्योर्ड लोन और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट बाय एनबीएफसी टू एनी कंपनी, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन आपका प्रोवाइड करने के लिए भी आरबीआई आपका बैंक दे कैन नॉट फाइनेंस टू एमएफआईज। ओके, तो ये कुछ एरियाज अगेन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है, आप लोगों ने आई होप इसके बारे में सुना होगा, डीएफएस सुना होगा, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है। पहले ये एक ही हुआ करता था, आपका बैंक और नॉन बैंक दोनों को एक ही डिपार्टमेंट दिखता था, बट अभी एनबीएफसी के लिए एक अलग सा आपका विंग जो कि यहाँ पे प्रिपेयर किया गया, जिसको हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल बैंक है उनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन is interested with the responsibility of regulation and supervision of NBFCs under the regulatory provision contained under Chapter 3 B and C and Chapter 5 of the Reserve Bank of India Act 1934, ठीक है। तो ये अगेन दिस पार्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, ध्यान रखें। सो दिस इज इट। अब कुछ क्वेश्चन कैसे आपके एग्जामिनेशन में दिए गए हैं, मतलब आपके बुक के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। आई ऑलवेज से कि ये जो क्वेश्चन है इनका लेवल बहुत बेसिक है, दे आर जस्ट आपका एक छोटा सा टेस्ट करने के लिए। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा भी तो हाफ मार्क्स से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अगर आप पास्ट पेपर को भी उठा करके देखेंगे तो आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक पता चलेगा। व्हेन वाज चैप्टर 3B एडेड टू दी आरबीआई एक्ट 1934, कौन से ईयर में हुआ था? 1997, ठीक है, जितना मुझे याद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटर ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, तो कौन रेगुलेट करता है? एनएचबी आपका, ठीक है। अ लोन कंपनी इज एनबीएफसी एज पर विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। लोन कंपनी किस में आता है? आपका एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन के अंदर आपका, ठीक है, लोन कंपनी जिसमें थी। What is the maximum period for which NBFC deposit taking can accept deposit? कितने महीने के लिए? 60 months के लिए। Which of the following can be considered as part of own funds for the NBFC? तो जिसमें equity shares, yes. Compulsory convertible preference shares, they are also part of this. Balance sheet premium, आपका share premium, yes. तो क्या होगा आंसर आपका? All of the above आपका आंसर होगा, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस। तो काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका मॉड्यूल सी से, और हर साल आपका इसके ऊपर हर शिफ्ट के अंदर आपको एनबीएफसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशंस के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। सो आई होप सबको अच्छा सा समझ में आया होगा, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट्स में आपका लिख के बताएं, और अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हैं तो क्वेरीज भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आई विल शेयर दिस पीडीएफ इन आवर टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे आप हमारे साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। दैट इज द जीआईबी सीआईबी प्रेप ऑफिशियल, ठीक है, इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। सो ऑफिशियल जरूर लगाइएगा पीछे से, ठीक है। सो जीआईबी सीआईबी प्रेप ऑफिशियल, जहां पे आपको ये मिल जाएंगे, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई सी यू टुमारो विद अ न्यू यूनिट नंबर 26, जहां पे हम लोग इंश्योरेंस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो एरियाज हैं, हालांकि जो इंश्योरेंस का मेजर पोर्शन है वो मॉड्यूल डी के अंदर है, आपका पूरे प्रोडक्ट्स एंड अदर्स, बट यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन या अदर्स जो दिए गए उनको हम लोग यहाँ पे भी कवर करेंगे, जिससे उसके लिए डी के लिए आपका फाउंडेशन रेडी हो जाएगा। सो दिस इज इट। प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज ऑल्सो शेयर विद योर अदर बैंकर्स जो आपके साथी लोग हैं उनके साथ। एंड आई विल सी यू टुमारो एट 6 AM, ठीक है, एवरी डे 6 AM अर्ली मॉर्निंग। एक एक दिन रोज इतना इतना पढ़ते रहो, आईएएफएस कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है, बट रेगुलर रहना है आपको। Consistency is the only key, right? So this is it. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.